اگرچہ میں ان سے جھگڑ رہا تھا کسی بڑے پیمانے پہ کسی اس میں ہونا چاہیے تھا. پھر جب اختتام وغیرہ پہنچ گئے تو مجھے بھی بہرحال بہت اچھی کانفرنس. میں تو بالکل خالی ذہن آیا تھا, خالی الذہن ہوں, لیکن پھر بھی کچھ تو کہنا پڑے گا. پاکستان ہوا میں کوئی لٹکتی ہوئی چیز نہیں ہے. پاکستان 4 بڑے قوموں کے وطنوں پہ مشتمل ایک ملک ہے. نہ ان کو کسی نے فتح کیا ہے, نہ کوئی کسی کی کالونی ہے, نہ کوئی کسی کا آقا ہے, نہ کوئی کسی کا غلام ہے. ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. شروع دن سے یہاں ایک آئین بننے کے راستے محدود کیے گئے. یہاں تک بات پہنچی کہ ہمارا ملک اس کشمکش میں ٹوٹ گیا. پھر 1973 میں بڑی مشکل سے ایک آئین کی تشکیل ہوئی, متفقہ آئین, جس کو متفقہ شاید اس لیے نہیں کہا جائے, بعض لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے. 12 لوگ ایگری کر گئے اس پہ. ہم بعض باتوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. انسان اپنی اجتماعی وزڈم میں جب اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کیا ہوگا کہ بس کبھی چنگیز خان چل پڑتا ہے, کبھی کوئی دوسرا چل پڑتا ہے, کبھی تیسرا چل پڑتا ہے, غریب لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں, اس کا علاج کیا ہوگا. تو اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے, جس کو جمہوریت کہتے ہیں, پرفیکٹ نظام نہیں ہے, لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا جس کی طرف ہمارے اشارہ کرتے ہوئے انگلیاں جلتی ہیں. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے, وہ سرحدوں پہ ہوگا, وطن کا دفاع کرے گا, اور جرگے میں وہ لوگ بیٹھیں گے جن کا تلوار اس سے تعلق نہیں ہوگا. یہ جرگہ سسٹم چلائے گا. میں کبھی کبھی غلط بات کر جاتا ہوں. ایک بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہنی ہوگی, اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا پاکستان کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے یا پاکستان افواج پاکستان کے لیے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا, دنیا کی افواج ہیں, ہمارا ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ملک بہترین فوج کے بغیر, کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر, بہترین اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً غداری کا وہ تماشا آ جاتا ہے. میں اکثر گھسے پچھے فکرے استعمال کرتا ہوں. جاسوسی ادارے کسی بھی اسٹیٹ کے بالکل آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. بالکل ہمارے جاسوسی ادارے 4 5 6 7 ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جاسوسی ادارے دنیا کے بہترین جاسوسی اداروں سے بھی کمپٹنٹ ہوں. CIA سے بھی, KGB سے بھی, فلانا سے بھی, فلانا سے بھی, فلانا سے بھی, اور ہیں بھی. ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہہ جاتا ہوں, وہ برا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک, خیبر سے لے کر سارے بلوچستان تک, یہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ارادہ کیا ہے؟ پشتون اور بلوچ, کوکر بھائی, پاکستان کے یہ 4 قومیتیں, پشتون اور بلوچ انڈس کی اس پر یہ سینٹرل ایشین پیپل ہیں, یہ مرکزی ایشیا کے لوگ ہیں. سندھ اور پنجاب انڈین اسٹاک کے لوگ ہیں. ابھی جب اس قسم کے متفرق قسم کے لوگ رہتے ہوں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوگا جس کی تابعداری ہر ایک کو کرنی پڑے گی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک اور ہمارے صوبے میں, سارے صوبے میں, ہماری حکومت یا ہماری ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ پن پوائنٹ نہ کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. مینز منن کے نام پہ جب آپ آئیں گے, لوگوں کے مینز منزل پہ قبضہ کریں گے, ویسی اصطلاح میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر ہے, فاٹا یا پشتون علاقہ. وہ علاقہ غیر اتنا مالک رکھتا ہے کہ ایک ایک انچ زمین کی تقسیم ہو گئی ہے.
बाजवड़ में जितने भी कबाइल रहते हैं वो आपको बता देंगे मोमन की ज़मीन कहाँ है, साफ़ी की कहाँ है, फलाने की कहाँ है, फलाने की कहाँ है। एक एक दरख्त पे लड़ते हैं कि जी ये मेरे इलाके में, आपके इलाके में नहीं है। ये जाता है उस वक्त तक। पश्तून और बलोच मैं माफ़ी चाहता हूँ, अकबर आज़म के वक्त से अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ते रहे हैं। बाजिद रोशान की तारीख, खुशहाल खान की तारीख, अहमद खान की तारीख, गज्जू खान की तारीख, फलाने की तारीख, आखिर में बादशाह खान की खुदाई खिदमतगार। वो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी की हमने कभी इसके लिए किसी से वो नहीं किया। आज तो हालत ये हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज तो हालत ये हो गई है, ये पश्तून पगड़ी और ये दाढ़ी ये दहशतगर्दी की निशानी है। जहाँ ये दाढ़ी नज़र आई, जहाँ ये पगड़ी नज़र आई, पकड़ो उसको। जी कहाँ के रहने वालों, जी मैं कोयटा का हूँ या फलाना, नहीं तुम अफगानिस्तान के हो, नहीं तुम फलाना के हो। कोकर भाई मैं आपको इसलिए मुखातिब करता हूँ, मेरे आप दोस्त हैं, आप यकीन करें पाकिस्तान में तमाम शहरों में पश्तूनों की ज़िंदगी सख्त मुसीबत है, सख्त मुसीबत। क्यों उनका वो नुकसान ये कि वो पश्तो बोलते हैं और पश्तो अफगानिस्तान में भी बोली जाती है। मजदूर गरीब लोग सख्त मुश्किल में, सक्कर में, हैदराबाद में, फलाना, फिर उनको जो बेइज्जतियाँ होती है, जिस तरह उनको मारा पीटा जाता है। हमने ये फैसला करना होगा जितना जल्दी हम कर सकें कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है या ये मुल्क उनके हवाले है। जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। बाद लोग बात शुरू करते हैं दहशतगर्दी, दहशतगर्दी बेइंसाफ़ी से नफ़रतें बढ़ती हैं, बेइंसाफ़ी से कदूरतें बढ़ती हैं और बेइंसाफ़ी के नतीजे में फिर बात यहाँ तक पहुँचती है कि जी फलाना दहशतगर्द। अगर दहशतगर्दी की तारीफ़ नई तारीफ़ ना की गई, दुनिया के बहुत बड़े उलुल आज़म लोग, इनकलाबी और मौलवी साहब को पता है, दुनिया के हज़ारों पैगम्बरों, नबियों, रसूलों को कत्ल किया गया क्योंकि वो निज़ाम के ख़िलाफ़ एक इनकलाब लाना चाहते थे, निज़ाम को छेड़ना चाहते थे, कत्ल किए गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के साथ बांध के बिल्कुल आरा चला दिया गया था। दहशतगर्दी की तारीफ़ हमें करनी होगी। वतन की हिफाजत के लिए जो आदमी फरारी होता है, जो आदमी पहाड़ी इलाकों में, ये रिवायत है कि जब आदमी नाराज़ होता है तो पहाड़ पे चला जाता है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, मेरे साथ फ़लानी फ़ैसले में गलत काम हुआ, मेरे फ़लाने हुआ। फिर जगह जाते हैं, फिर उसको बुलाया जाता है, फिर फ़लाना होता है। यहाँ जो आदमी एहतजाज करता है उसको आप वो कर देते हैं। मैं बात आज़म पैगम्बरों के वो नहीं करता। कुरान करीम ग़ुलामी को बंदगी कहता है। कुरान करीम कहता है, सूरह किसस से या दूसरी सूरत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़िरौन एक बहुत मुस्तबद और जालिम बादशाह था। वो इंसानों को कत्ल करता था, उन पर जुल्म करता था। फिर मैंने मूसा से कहा कि जाओ उस जालिम से कहो कि मेरी कौम को तेरी बंदगी से आज़ादी दे। मूसा अलैहिस्सलाम, अख्तरजान भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम तहरीक अपने अवाम की आज़ादी की तहरीक है और उस आज़ादी की तहरीक को रोकने के लिए फ़िरौन ने यह फ़ैसला किया कि इस मिल्लत के मेरे जो ग़ुलाम हैं, जो मेरे कब्ज़े में हैं, इनके हर औलाद नरीना को ज़बह कर दो। यहाँ वो जुल्म तो नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों को ज़बह किया जाएगा। फ़िरौन ने यह किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने नेते आज़ों से मजलूम व मखूर लोगों को मुनज़्ज़म किया और फ़िरौन का बेड़ा गर्क हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा उल आज़म पैगम्बर नमरूद के सामने खड़ा हुआ। हम तो आज ऐसे गए गुजरे हैं कि किसी मलिक के सामने बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मैंने इस आदमी से खुदा की कसम बात नहीं की। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क में आज़ाद सही इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी से खैरात नहीं चाहते, हम किसी से ज़कात नहीं चाहते। जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया है हमारे वतनों में है, पश्तूनों में, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच इलाके में है, उस पे जैसे वकील साहब ने फरमाया, उस पे कम से कम पहला हक हमारे बच्चों का तस्लीम कर दो। ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जो कुछ अल्लाह ने वहाँ पैदा किया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया, ये नहीं होगा कि आप वज़ीरिस्तान में सोना ढूंढने के लिए वज़ीरों से लड़ेंगे। वज़ीरों को नई इस्तिलाह है, अंदरूनी जो महाजर बना दिए जाते हैं, उनको आप बेचोगे, बहुत इससे बड़ी बर्बादी जना मिलेगी।
सोवियत यूनियन जैसा मुल्क छोटे से यूक्रेन के मुकाबले में परेशान खड़ा है। यूक्रेन की सारी इस्टेब्लिशमेंट, यूक्रेन का सारा निज़ाम रूसियों ने बनाया। उन्हें पता है अड्डा कहाँ है, हवाई अड्डा कहाँ है, फलाना कहाँ है, तेल के ज़खायर कहाँ है, फलाना कहाँ है। छोटा सा यूक्रेन, लेकिन जब उसे उनके मुखालिफिन ने सपोर्ट दे दी, अब रूस हैरान पड़ा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम बागी नहीं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये कैसे होगा? ट्रंप पे गोली चली, यहाँ से कान से गुजरी, जो औरत इंटेलिजेंस की जिम्मेवार थी उसने उसी समय इस्तीफ़ा दे दिया कि ये मेरी इदारे की कमज़ोरी थी, मैं उस इदारे की हेड थी कि ये आदमी किस तरह वहाँ पहुँचा और किस तरह इसने प्रेसिडेंट पे गोली चलाई। ट्रेन उलट जाती है, वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता है। ये जो अभी इतला आई 12 बजे, ये जो ज़ियारत का मामला है, 12 बजे इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा है कि हमारी गोलियाँ मोलियाँ ख़त्म हो रही हैं, लोग ज़्यादा हैं, खुदा के लिए हमें इमदाद पहुँचाओ। 5 बजे तक वो मेहनत वो करते रहे, डिप्टी कमिश्नर या जो बला है। 5 बजे के बाद उन्होंने टेलीफोन किया अपने अजीज़ों को कि भाई हम तो बिल्कुल नेते वो हो गए हैं, वो मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते आप मेहरबानी करें, कुछ इमदाद करें। बुख्शी साहब वज़ीर आला है, किसी शरीफ आदमी को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए था, या किसी को तो किसी से नौकरी से निकाल देना चाहिए था। बस इंसान है, मरते रहेंगे। आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी के उसमें चला जाएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपनी अफवाज से रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एजेंसियों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो कुछ आपको चाहिए मेहरबानी करें। जो आइन का हल्फ आपने उठाया है उसका आप ख्याल रखें, जो हमने उठाया हम ख्याल रखेंगे। सिपाही से लेकर जर्नल तक उनका हल्फ ये होता है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने हल्फ का ख्याल रखो, पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान चल जाएगा। और थोड़ा सा हमने भी मेहरबानी करनी होगी। हमारी खबरीन बेटे हैं, दोस्त बेटे हैं, ये जो कुछ हमारे आइन में हुआ, 26वीं तरमीम, फलानी तरमीम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन तारीख़ बयान करते हुए कहना पड़ता है, अगर हमारे छोटे सूबों के वोट ना होते ये आइन नहीं बिगड़ना था। हमारे छोटे सूबों के बलोच, सिंधी, पश्तून, हमारे कौमी असम्बली में इतने वोट थे, सूबाई सीनेट में इतने वोट थे कि इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती थी। हमने मसलियत के तहत ये काम किया है, हमने मसलियतों से के काम लेते हुए अपनी बर्बादी की है, अपनी अदालत के हमने पर काटे हैं, अपनी उस पर पाबंदी लगाई है, अपने हाथों को हमने बांधा है। 26वीं तरमीम 2 वोट से कामयाब हुई थी, कौमी असम्बली और सूबाई की सीनेट के मिला के 2 वोट से, जबकि हमारे वोट कम से कम 15-20 थे। इसी भी में कम पीपल पार्टी के वोट, हमारे वोट, तहरीक इंसाफ के वोट, बलूच इलाकों के वोट, हमने वोट दिए अपने खिलाफ। कोकर साहब ने जो बात की, कोकर भाई, सीनेट के इंतखाबात डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, सीनेट को वो इख्तियारात देने चाहिए जो कौमी असम्बली के पास है। सीनेट डायरेक्ट इंतखाबात हो या इनडायरेक्ट, सीनेट मॉनिटरी बिल में फलाना में जहाँ 2 मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं, वह इसीलिए बाई कैमरल निज़ाम लाया जाता है कि छोटे हाउस बड़े हाउस में सबके पंजाब भी 25 होता है या 20, सिंध भी 20, बलोच भी 20, पश्तून भी 20, इस तरह वो बैलेंस चला जाता है। आज भी अगर सीनेट में वो दे दी जाए, और हमारे अगर कोई जिरगा हो सकता है, जिरगा बना दो, जिरगा बना देंगे, आर्मी चीफ के पास चले जाएंगे, खुदा को मानो हमारी जान बख्शो, अपना काम करो, पाकिस्तान हम बना देंगे। ये बलूचों को मैं राज़ी करूँ, आप सिर्फ ये वो कर दें, पश्तूनों से ये कर दें कि अल्लाह पाक ने जो आपको ये वतन में दिया है, इस पे पहला कानूनी अनीनिया आपके बचे होगा। ये सिंधी से कह दें, आपके साहिल व साहिल, यही बलोच से कह दें, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने बिस्मिल्लाह कर लिया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुदा वो ना करे, मैं वो किताब बोल रहा हूँ, उसमें 15 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें नेपोलियन भी था। 15 लड़ाइयाँ हुई थी आवाम की और अफवाज की। नेपोलियन जैसा वो लीड कर रहा था, उसमें 15 के 15 में अवाम जीती थी, अफवाज आ रही। 15 के 15 में अवाम जीती थी। उसमें वियतनाम में अमेरिकन जर्नल ने किताब लिखी है, उसने कहा जब बड़े तंग हुए, डिस्परेट हुए, हमने वियतनाम पे इतने बम गिराए जो तमाम जंगाजी में नहीं गिराए थे, लेकिन फिर भी हमें वियतनाम से निकलना पड़ा। आए इस मुल्क को संभालें, इस मुल्क को
اس ملک کا علاج یہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ خود مختار ہوگی, آزاد انتخابات ہوں گے, ہر علاقے پہ ہر قوم کے مسائل پہ اس قوم کے بچوں کا اختیار ہوگا, ان کی زبانوں کا احترام ہوگا, سینٹ قومی اسمبلی کے برابر ہوگی, قومی اسمبلی کے فیصلے عدلیہ اپنے فریم میں آزاد ہوگی, پریس آزاد ہوگی. پاکستان انتہائی بہترین خوشحال ملک بن سکتا ہے اگر کوئی بنانا چاہے. اور اگر آپ نے زور لگانا ہے بسم اللہ, ویسے بھی لوگوں نے تو مرنا ہوتا ہے, آپ نے مارنا ہے کتنے کو مارو گے؟ فرعون سے زیادہ تو آپ نہیں مار سکتے. یہ ملک ہمارا ہے, آئیں عہد کریں, ہر ادارہ عہد کرے. یا بات ہوئی معافی مانگنے کی, معافی سب مانگے, سارے ادارے, افواج پاکستان بھی, ایجنسی دائرے بھی, سیاسی لوگ بھی. مصلحتوں سے کام نہ لیں, چھوٹی چھوٹی مصلحتوں میں آپ نے بربادی کر دی. عذرائے مذاق, لیکن دل کی بات کرتا ہوں, عذرائے مذاق, جب تحریک انصاف کے چھینی ہوئی سیٹیں بانٹی گئیں تو کسی نے لینے سے انکار نہیں کیا. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, وہ ریوڑیوں کی طرح باندھ رہے تھے اور ہم نے اپنی جیبیں ایسے رکھی ہوئی تھی, ڈالو. کیسے چلے گا؟ آئیں وعدہ کریں, عہد کریں. جب افواج اس قدر آ جاتی ہیں, جب وردی میں لوگ اسمبلیوں کو مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ بسم اللہ بولیے شفتالو کا کریٹ کتنے کا, بسم اللہ 30 کروڑ 40 کروڑ. 40 کروڑ میں جب آپ اسمبلی کی سیٹیں بیچیں گے, ان کو وزیر بنائیں گے, وہ تو یہ 40 کروڑ پاکستان کے پیٹ سے نکالیں گے. انہیں پاکستان سے کیا غرض؟ وہ تو اس میں آ کے بولی پہ آ کے آپ نے مہربانی کر کے اس کے وہ کر دیا. غلطیاں ہوئی ہیں, سب نے کی ہیں, توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہماری طرف سے میں ان کا چاچا ہوں, بلوچوں کا بھی چاچا ہوں, سندھیوں کا بھی چاچا ہوں. ہم آپ کو قرآن کریم کے صفوں پہ لکھ کے دے دیں گے. ہماری عزت کا خیال رکھو, ہماری خود مختاری کا خیال رکھو, ہمیں اپنے وسائل پہ وہ حق دے دو, آئینی حق دے دو, پاکستان بن جائے گا. اور اگر آپ نے یہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا پھر آپ کی مرضی, آپ نے جو کرنا ہے بسم اللہ. پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اس کے ہم پھر ذمہ وار نہیں ہوں گے. اس میں ذمہ وار وہ قوتیں ہوں گی جو پاکستان کو بندوق کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ چلانا چاہتی. گاڈ بلیس یو.